Hello students, how are you? I hope all of you have enjoyed your holidays, right? Today we are going to start second chapter of your geography book and name of the chapter is Inside the Earth. The earth is about 460 crore years old. This is age of the earth. Its surface has been undergoing changes throughout these years. इसका जो surface है उसमें changes आते रहे हैं in 460 crore years में. We still have very limited information what is inside our earth. हमारे पास बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है हमारी अर्थ के बारे में. A detailed study of the interior of the earth is done by geologists. तो अर्थ की स्टडी करने वालों को क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट्स. An elementary knowledge about the earth structure is necessary to understand the nature of the changes that take place on the surface of the earth. एक एलिमेंट्री नॉलेज मीन्स एक शुरुआती एक बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो बाद वाले चेंजेस हैं उनको समझ पाएं. It is impossible to reach the center of the earth because the temperature inside increases with the increase in depth. ये impossible है कि हम अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएं क्योंकि टेम्परेचर है वो डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है. जितनी गहराई में हम जाएंगे उतना ही टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा. द टेम्परेचर at the center is estimated to be about 5000 डिग्री सेल्सियस. जो सेंटर में टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 5000 डिग्री सेल्सियस है. Thus, it is not possible to assess direct information about the interior of the earth. इसलिए ये तो पॉसिबल था ही नहीं कि हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में, अर्थ के अंदर क्या है उसके बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल लें. Most of our knowledge about the earth structure and interior is based on the density of the material and behavior of the earthquake waves. जो हमारी ज़्यादातर नॉलेज है अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में और उसके इंटीरियर्स के बारे में वो किन दो चीज़ों पर निर्भर करती है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स एंड बिहेवियर ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स. These waves reveal that the earth behaves like a solid body up to a depth of about 2900 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस. सरफेस से 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो अर्थ है वो सॉलिड बॉडी की तरह काम करती है. द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज अबाउट 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. जो एवरेज डेंसिटी है अर्थ की वो कितनी है? 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. द अर्थ इज नॉट कंपोज्ड ऑफ यूनिफॉर्म मटेरियल. एक जैसे मटेरियल की नहीं बनी हुई है अर्थ. The materials of the inner layers are heavier than that of the outer layer. जो inner layers में material हैं वो outer layers के मुकाबले क्या हैं? Heavy हैं. The density of the rocks increases towards the center. Rocks की density भी जैसे जैसे हम center की तरफ जाते हैं वैसे वैसे rocks की जो density है वो भी क्या होती है? Increase होती जाती है. Structure of the earth. Earth की structure क्या है? On the basis of varying density and other physical and chemical properties of rocks. Rocks की अलग अलग density, physical and chemical properties के कारण the earth can be divided into 3 concentric layers. उसको 3 layers में बांटा गया है. This is very important. Crust, mantle and core. This arrangement can be compared to an onion with its layer one inside the other. इसको समझने के लिए बहुत अच्छी एग्जाम्पल एक अनियन की है. जैसे उसमें एक लेयर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लेयर होती है वैसे ही हमारी अर्थ में होती है. क्रस्ट. द क्रस्ट इज द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लिथोस्फीयर. जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट. इट इज a relatively thin layer, थोड़ी पतली लेयर है. the upper part of the crust is called continental crust. जो ये पार्ट है इसे हम कहते हैं continental crust. the lower part is called oceanic crust. और जो lower part रह जाता है इसका वो क्या है? oceanic crust. इसकी thickness 35 किलोमीटर and इसकी thickness 5 किलोमीटर. the continental crust is made up of silica and alumina.
and so it is called Sial. Si for silica and Al for alumina. The oceanic crust is made up of silica, Si and magnesium Ma, and therefore it is called Sema. The average density of the crust is about 3 gram per cubic centimeter. Density कितनी है? 3 gram per cubic centimeter. The outer crust has soil. जो बाहर वाली crust है उसमें soil है. It also provides us with most of the minerals. Soil में minerals तो होते ही हैं. That is why we are able to grow plants. Mantle. Just beneath the crust is a 2900 kilometer thick layer called the mantle. Crust के नीचे 2900 किलोमीटर थिक लेयर है जिसे क्या कहा जाता है? मैंटल. इट लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर. क्रस्ट और कोर के बीच में होती है ये. इट इज मेड अप ऑफ डेंस एंड हैवी मटेरियल्स. ये हैवी मटेरियल्स और डेंस रॉक्स से बनी है, सच एज आयरन एंड मैग्नीशियम. आयरन और मैग्नीशियम. द एवरेज डेंसिटी रेंजेस बिटवीन 3.5 ग्राम टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. यहाँ पे 3 ग्राम था, यहाँ पे 3.5 टू 5.5 ग्राम. दैट मीन्स जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है. द टेम्परेचर इन द मैंटल इज़ वेरी हाई. इसमें टेम्परेचर होता है जो वो बहुत ज़्यादा होता है. मैग्मा इज़ फाउंड इन दिस लेयर. इसमें क्या मिलता है? मैग्मा मिलता है. मैग्मा यानी कि लावा. कोर. द कोर लाइज बिलो द मैंटल. मैंटल के नीचे क्या है? कोर है. अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ. और अर्थ के सेंटर में ये जो डॉट नज़र आ रहा है आपको, ये अर्थ का सेंटर है और उसके अराउंड यानी कि उसके चारों तरफ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेरिस्फीयर. इसको बेरिस्फीयर भी कहा जाता है. द एवरेज रेडियस ऑफ द कोर इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर. जो एवरेज रेडियस है कोर का वो 3500 किलोमीटर है. यानी कि अगर हम एवरेज रेडियस लगाना चाहें तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा जो पोर्शन है वो रेडियस है. इट इज़ मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स. हैवी मेटल्स से बनी हुई है, सच एज निकल एंड आयरन. देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाइफ. Ni stands for nickel and Fe for iron. The temperature of this layer varies between 2200 degrees Celsius and 5000 degrees Celsius. इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है. The average density ranges between 5 gram and 30 gram per cubic centimeters. 5 to 13 हो गया यहाँ पे. सो जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और जो ये लेयर है ये हैवी मेटल्स की बनी हुई है. मटीरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट के मटीरियल्स कौन से होते हैं? द लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. लिथोस्फीयर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो किससे बना होता है? रॉक से बना हुआ है और मिनरल से बना हुआ है. रॉक्स आर दोज मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. रॉक्स वो मटेरियल हैं जो अर्थ की क्रस्ट से हमें मिलते हैं. दे इंक्लूड नॉट ओनली द हार्ड मटीरियल सच एज ग्रेनाइट एंड मार्बल. इनमें सिर्फ ग्रेनाइट मार्बल ही इंक्लूड नहीं होते, बट ऑल्सो सॉफ्ट एंड लूज मटीरियल्स जस्ट एज चॉक, क्ले, सैंड एंड सॉल्ट. मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों तरह के मटीरियल्स हमें इसी से मिलते हैं. रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स से बनती हैं. दे डू नॉट पोजेस अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. उनकी कोई एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन नहीं होती कि इसी केमिकल कंपोजिशन में जो रॉक है वो बनेगी. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन रॉक्स. जो मिनरल्स हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज हैं जो रॉक में अपने आप ही होते हैं. दीज आर सॉलिड सब्सटेंसेज. ये सॉलिड सब्सटेंसेज हैव विच हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिनकी एक एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन है. अ रॉक इन विच अ पर्टिकुलर मिनरल इज फाउंड इन अ लार्ज परसेंट इज कॉल्ड द ओर ऑफ दैट मिनरल. एक रॉक जिसमें कोई एक तरह का मिनरल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उस मिनरल का ओर कहा जाता है, स्रोत कहा जाता है. माइनिंग इज मोस्टली डन इन दोज एरियाज वेयर ओर्स आर अकर. माइनिंग वहाँ पे ही की जाती है, खदानें वहीं पे खोदी जाती हैं जहाँ पे ओर्स पाए जाते हैं. टाइप्स ऑफ रॉक्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज. अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग तरह की रॉक्स बनती हैं. दस they have different characteristics with regards to their composition, color, size and texture. इसलिए उनके characteristics भी अलग अलग हैं. On the basis of their mode of formation, there are 3 major types of rocks.
मोड ऑफ फॉर्मेशन, बनने के तरीके के ऊपर अगर हम बात करें तो 3 तरह की मेन रॉक्स हैं, igneous, sedimentary and metamorphic. So 3 types of rocks are there. Igneous rocks. The word igneous has been derived from the Latin word ignis, meaning fire. जो igneous word है वो Latin word ignis से बना है जिसका मीनिंग है फायर. The igneous rocks are associated with volcanic eruption. जो igneous rocks हैं वो volcanic eruptions से related हैं. They are formed when magma cools down and solidifies. वो तब बनती हैं जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है. These rocks were the first to be formed and thus are also known as primary rocks. ये rocks सबसे पहले बनी थी इसलिए इन्हें primary rocks के नाम से भी जाना जाता है. Igneous rocks are of 2 types. 2 तरह की हैं, intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks. The rocks that cool below the surface of the earth are called intrusive igneous rocks. वो rocks जो अर्थ के सरफेस के नीचे ठंडी हो जाती हैं उन्हें कहा जाता है intrusive igneous rocks. The rate of cooling is slow inside the earth. जो कूलिंग का रेट है, जो स्पीड है अर्थ के अंदर वो बहुत कम होती है. दस द क्रिस्टल्स फॉर्म्ड ऑन कूलिंग आर लार्ज. जो क्रिस्टल्स बनते हैं कूल होने पे, ठंडा होने पे मैग्मा के, वो बहुत बड़े होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स आर ग्रेनाइट एंड डॉलराइट. द रॉक्स दैट कूल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. जो अर्थ के सरफेस पे ठंडी होती हैं उन्हें एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं. जो अंदर ठंडी होती हैं दैट इज इंट्रूसिव, और जो अर्थ के सरफेस के ऊपर बाहर ठंडी होती हैं दैट इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. These rocks are also known as volcanic rocks. इनको volcanic rocks भी कहा जाता है ड्यू टू रैपिड कूलिंग. बहुत जल्दी कूलिंग होती है इनमें. द क्रिस्टल्स आर फाइन ग्रेन्ड. जो क्रिस्टल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. बेसॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक. बेसॉल्ट ऐसे ही एक रॉक का एग्जाम्पल है. द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ बेसॉल्ट रॉक्स. जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का वो इसी तरह की रॉक्स से बना है. इग्नियस रॉक्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज रॉक्स आर हार्ड एंड कम्पैक्ट. ये हार्ड भी हैं, कम्पैक्ट भी हैं. दीज रॉक्स डू नॉट अकर इन डिस्टिंक्ट बेड्स और स्ट्राटा. जो इस तरह की रॉक्स हैं वो किसी स्पेशल एरिया में नहीं होती है, उन्हीं एरियाज में होती हैं जहाँ पे वोल्केनोज होते हैं. दीज रॉक्स डू नॉट हैव रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स. एनिमल्स और प्लांट्स के कोई रिमेन्स नहीं होते हैं इनमें. दीज रॉक्स डू नॉट अलाउ वाटर टू परकोलेट थ्रू दैम. तो ये जो रॉक्स हैं ये पानी को अपने आप से गुजरने नहीं देती हैं. अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स. जो दूसरी तरह की रॉक्स हैं वो भी इग्नियस रॉक्स से ही बनती हैं. वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर फाउंड इन दीज रॉक्स. ये मिनरल्स इन्हीं रॉक्स में पाए जाते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स. रेन, विंड, आइस, प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेक रॉक्स इनटू द फ्रेगमेंट्स. ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो रॉक्स को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं. These rock fragments are carried away by running water, wind and ice. ये जो rock fragments हैं, टुकड़े हैं जो rocks के, उन्हें running water, wind और ice अपने साथ ले जाती हैं and are deposited in depression. और नीचे के एरिया में उनको डिपॉजिट कर देती है, जमा कर देती है. The deposited materials are कॉल्ड सेडिमेंट्स. जो मटेरियल्स डिपॉजिट हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सेडिमेंट्स कहा जाता है. द लूज सेडिमेंट्स आर देन कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स. तो जो ये लूज सेडिमेंट्स होते हैं फिर धीरे धीरे टाइम के साथ ये कंप्रेस होते हैं, हार्ड होते हैं और रॉक्स की लेयर्स बना देते हैं. These are sedimentary rocks. इन्हें sedimentary rocks कहा जाता है. Sedimentary rocks are formed either mechanically, केमिकली और ऑर्गेनिकली. तीनों तरीकों से ये बन सकती है. These rocks are the most widespread and cover about 75% of the total land area of the earth. अर्थ का 75% एरिया जो है लैंड एरिया वो इन रॉक्स ने कवर किया हुआ है. Sedimentary rocks have the following characteristics. इनकी characteristics क्या हैं? These rocks are softer than igneous rocks. ये igneous rocks से softer हैं. These rocks have horizontal layers arranged
वन अबव द अदर। ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं, इसमें एक के ऊपर दूसरी लेयर नजर आती है। These rocks are mostly formed underwater and have marks of waves and mud cracks. पानी में बनती हैं तो इसलिए वहाँ पे उसमें वेव्स के और मड क्रैक्स के निशान होते हैं। These rocks also contain remains of animals and plants called fossils between the layer. ये जो रॉक्स हैं इनमें एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स भी होते हैं जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं लेयर्स के बीच बीच में। The important examples are sandstone, limestone and coal. Metamorphic rocks. The metamorphic rocks are actually igneous or sedimentary rocks which have been changed due to excessive heat and pressure inside the earth. जो metamorphic rocks हैं वो दरअसल igneous और sedimentary rocks ही होती हैं जो कि excessive heat और pressure के कारण अर्थ के अंदर चेंज हो जाती है। एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर कैन चेंज द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स। जो एक्सेसिव हीट और प्रेशर है अर्थ के अंदर वो रॉक्स की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है, सच एज देयर कलर, हार्डनेस, टेक्सचर एंड मिनरल कंपोजिशन। सच चेंज्ड रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऐसी रॉक्स जो चेंज हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। द एक्ट ऑफ मेटामॉर्फिज्म टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर। इस काम में मेटामॉर्फिज्म के काम में कई सौ साल लग जाते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, एक अच्छे टाइम के बाद, लाइमस्टोन कैन चेंज इनटू मार्बल, शेल इनटू स्लेट, ग्रेनाइट इनटू नाइस, सैंडस्टोन इनटू क्वार्ट्जाइट एंड सो ऑन। जेम्स कैन बी फाउंड इन दीज रॉक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी रॉक्स में आपको जेम्स मिलते हैं? सो मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दीज रॉक्स आफ्टर चेंजेस रिमेन्स इन देयर ओरिजिनल पोजिशन। चेंज होने के बाद भी ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन में ही रहते हैं। दे आर वेरी हार्ड एंड हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। बहुत हार्ड है और हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। दीज रॉक्स डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेसेस इन दैम। उनके बीच में एम्प्टी स्पेस नहीं होती है, खाली जगह नहीं होती है। Uses of rocks and minerals. In ancient times, rocks were used to make tools and weapons. पुराने टाइम में टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए यूज की जाती थी। रॉक्स आर वाइडली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। रोड्स की, हाउसेज की और बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती हैं। मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम प्रोवाइड द सोर्स ऑफ पावर। कोल, पेट्रोलियम हमारे लिए पावर का सोर्स है। केमिकल्स फाउंड इन सम सेडिमेंट्री रॉक्स आर यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स। केमिकल्स से हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। सॉयल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स। जो सॉयल है उसको भी उपजाऊ बनाती हैं रॉक्स। रॉक साइकिल, द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर इज नोन एज द रॉक साइकिल। जो एक टाइप की रॉक का दूसरे टाइप में चेंज होना कुछ सर्टेन कंडीशंस में और साइक्लिक मैनर में, इसको हम क्या कहते हैं? रॉक साइकिल। द रॉक साइकिल has neither a beginning nor a end. ना तो शुरू होता है ना खत्म होता है। In this process the matter of the earth's crust is not lost. जो मैटर है अर्थ क्रस्ट का वो कहीं पे लॉस्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। The rock cycle operates in the following ways. The hot and molten magma forms igneous rocks on cooling. हमने किया कि hot magma है वो वोल्केनो से जब निकलता है तो वो igneous rocks बनाता है। These igneous rocks are exposed to different agents of weathering and erosion on the earth's surface. ये जो igneous rocks हैं इनको different agents का सामना करना पड़ता है, weathering का या erosion का अर्थ के surface पे। The broken rock fragments when transported and deposited in basins form sedimentary rocks. जब वो टूटती हैं तो broken rock fragments होते हैं तो जो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और बेसिन्स में जमा हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। द लेफ्ट ओवर इग्नियस रॉक्स एंड द न्यूली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्ट टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। जो बची हुई इग्नियस रॉक्स हैं और नई बनी हुई सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के अंडर रहती हैं दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो एक टाइम के बाद वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। द सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर बरीड अगेन एंड मेल्ट टू फॉर्म मैग्मा। तो सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स को
दोबारा बरीड किया जाता है और फिर वो मैग्मा की फॉर्म में मेल्ट हो जाती हैं. दिस मैग्मा अगेन कूल्स डाउन एंड फॉर्म्स इग्नियस रॉक्स. और फिर ये मैग्मा दोबारा ठंडा हो जाता है और इग्नियस रॉक्स बनाता है. थ्रू आउट द जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, इस काम में कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं. रॉक्स एंड मिनरल्स हैव बीन चेंजिंग ड्यू टू द वर्किंग ऑफ द रॉक साइकिल. रॉक्स और मिनरल्स चेंज होते रहते हैं इस रॉक साइकिल की वर्किंग के कारण. So students, this was a very interesting chapter and I hope you have understood this chapter. Now I am forwarding you one assignment. I hope you will be able to solve it and submit it to me. Okay? Take care. Goodbye.